Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an International Islamic University School Saiwal online lectures. This lecture is for grade 5 for the subject of English. And in this lecture, we are going to begin our unit number 1 with the topic present tense. Before beginning the lesson, you just need to read the instructions first. And the instructions are: keep your book and your complete stationery with you. Prepare your classwork page with today's date and day on the top of the page. Listen to the teacher attentively and follow as she directs you. Listen to the lesson in pauses and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. If you find any difficulty during the lesson or during your homework, you can ask questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Let's begin our today's lesson. As unit number 1 is a biography. So first of all, we need to understand what is a biography. A biography is a written story about someone's life created by someone else. For example, there has been some personality in the history like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and someone writes his life story on the base of his life real events. The story will be called Biography of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It's not necessary for the person to be the historical person or the political personality or some renowned personality to be written as a biography. You can also write a biography of your best friend. You can write a biography one of your parents. You can write a biography of your teacher or anyone. बट देयर आर ऑलवेज सम की फीचर्स टू राइट डाउन इट. ये कोई ऐसी कोई सिंपल स्टोरी नहीं होती, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. लाइक इट टेल्स द स्टोरी, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सनस एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स. आप जो बायोग्राफी लिखेंगे उसमें आप कोई इमेजिनरी इवेंट्स नहीं लिख सकते. इट कैन नॉट बी अबाउट एन इमेजिनरी पर्सनैलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी बायोग्राफी जो है वो आप सिंड्रेला पे बायोग्राफी नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी कैरेक्टर, राइट. आप जब भी बायोग्राफी लिखेंगे आप किसी रियल पर्सन के रियल एक्सपेरिमेंट्स, रियल एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे. आप किसी रियल पर्सन के बारे में भी लिखते हुए उसमें कोई इमेजिनरी इवेंट्स ऐड नहीं करेंगे, उसकी रियल लाइफ के इवेंट्स ही ऐड करेंगे. एंड द थर्ड मेन फीचर ऑफ राइटिंग बायोग्राफी इज़ अ टाइम लाइन. Biographies show events in the order they happened throughout someone's life. अगर आप किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आपको उसे टाइम के साथ मेंशन करना होगा कि सपोज समवन हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर प्राइमरी एजुकेशन इन विच एज, और किस ईयर में वो अब्रॉड मूव किए और किस ईयर में उन्होंने कोई अवार्ड विन किया एट्सेट्रा. यानी कि बायोग्राफी में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर ये फीचर्स नहीं होंगे तो वो एक कोई इवेंट तो हो सकता है या वो एक स्टोरी तो हो सकती है, बट वो बायोग्राफी नहीं हो सकती. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर टुडेज एक्चुअल टॉपिक विच इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Today we are learning about the simple present tense, which helps us talk about facts, habits and routines. This tense is perfect for describing things that happen regularly or are always true. Grade 5 students, this is the topic you have been studying throughout all your grades from grade 1, 2, 3, 4 and now in 5 you again came across the same topic. So this is not new for you, but we will discuss it in complete detail. So मेरे साथ बने रहिए. When do we use the simple present tense? The simple present tense is one of the most useful tenses in English, and grade 5 students, this is the first most tense we learn when we are in the journey of learning the tenses. We first of all we learn about the simple present tense. It helps us communicate about things that are generally true or happen regularly. We use simple present tense in describing the facts. For example, here a statement is given that sun rises in the east. अब ये जो स्टेटमेंट है सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आज भी ट्रू है, ये अभी इस टाइम भी ट्रू है, ये 100 years पहले भी ट्रू थी और ये हमेशा ट्रू रहेगी कि सन rises in the east. So this statement will always be written and quoted in simple present tense. Next situation is describing habits. For example, किसी की habit है to get up early in the morning.
इट्स समवंस हैबिट। तो हैबिट को आपने जब भी एक्सप्लेन करना है, जब भी राइट करना है या बोलना है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, लाइक ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज़ रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर रूटीन टू गो टू स्कूल डेली। तो आप इस सेंटेंस को भी हमेशा कैसे लिखेंगे, आई गो टू स्कूल डेली। और अगर आप नोटिस करें ग्रेड 5 स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे होते हैं, लाइक रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, ऑफन, एट्सेट्रा। इन वर्ड्स से हमें पता चल जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते या बोलते वक्त सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट। हु इज़ अ सब्जेक्ट, ये तो आपको अगेन बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। जो किसी सेंटेंस में एक्चुअल कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी उस सेंटेंस में होती हैं। सो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। There is a specific rule for verb endings in simple present tense, and you already know that we add s and es with the singular subject. When the subject is he, she, it or any singular, we add s or es with the verb. For example, he goes to school, he pulls my leg. जब भी सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर आएगा तो उसके वर्ब के साथ हमेशा हम एस या ई एस ऐड करेंगे। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लाइक सब्जेक्ट होगा आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो हम उसमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, एस ई एस ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल, वी स्टडी इंग्लिश, एट्सेट्रा। फॉर दिस स्पेशल वर्ब एंडिंग देर आर सम रूल्स ऑफ कोर्स। जब कोई वर्ब जो है वो एस एच, टी सी एच या एक्स के साथ एंड हो रहा होगा और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, तो हम इन वर्ब्स के साथ ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रशेज हिज टीथ डेली, तो ब्रशेज में हम ब्रश के साथ एस नहीं ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या है कि जब भी कोई वर्ब ऐसा हो जिसके एंड पे वाई है और वाई से इमीडिएट बिफोर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन वर्ड जो जिसके एंड पे वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम वाई को आई के साथ रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज़, फॉर एग्जाम्पल शी स्टडीज़। अब शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि हम स्टडी के साथ आई ई एस ऐड करेंगे। अब आई ई एस क्यों ऐड किया है, क्योंकि एंड पे वाई था और वाई से पहले डी था और डी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सो हमने आई ई एस बना दिया और वो बन गया स्टडीज़। थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन ये है कि वर्ब के एंड पे वाई है और वाई से पहले कोई वॉवल है। फॉर एग्जाम्पल, से, इंजॉय, प्ले, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे एंड पे वाई है और वाई से पहले वॉवल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे। यहाँ पे हम वाई को आई के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग ट्रिकी, सो आई सजेस्ट you to rewind the video and listen this whole slide again. Okay, now it's time for practice. Here is an exercise to fill in the blanks. ये exercise आपको आपके students book page number 12 पे मिलेगी. So open your English students book, mark date and day on the top और मेरे साथ ये exercise solve करें. So the first sentence is Adnan dash his toy plane in the park on Sundays. Adnan fly or Adnan flies? Yes, Adnan flies. अपनी lead pencil पकड़ लें
लेड पेंसिल को शार्प करें और नीटली यहाँ ब्लैंक में फिल करें फ्लाइज। द सेकेंड सेंटेंस इज मिसेस अहमद ऑफन डैश ओल्ड मूवीज। मिसेस अहमद सिंगुलर नाउन है, सो हम इसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे। अब वॉच जो वर्ड है उसके एंड पे सी एच आ रहा है, इसका मतलब है कि ई एस ऐड करेंगे एंड द सेंटेंस विल बिकम Mrs. Ahmed often watches old movies. The third sentence is most children dash playing games to study. Most children prefer और most children prefers. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है most children, जो कि सिंगुलर नहीं प्लूरल है, सो यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ई एस ऐड नहीं करेंगे। The fourth sentence is when Mr. Ahmed is tired he dash in front of the TV. अब मिस्टर अहमद जो है वो सिंगुलर है, सो हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे और यहाँ पे जो वर्ब है उसके एंड पे एक्स है, सो हम ई एस ऐड करेंगे एंड द सेंटेंस विल बिकम व्हेन मिस्टर अहमद इज टायर्ड ही रिलैक्सेस इन फ्रंट ऑफ द टीवी। फिफ्थ सेंटेंस इज मैरी डैश शी कुड स्टे एट होम टुडे। मैरी wishes she could stay at home today. And the last sentence is all the students dash to keep their classroom clean. All the students, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, all the students, जो कि प्लूरल है, सो हम वर्ब के साथ एस सी एस ऐड नहीं करेंगे एंड द सेंटेंस विल बिकम all the students help to keep their classroom clean. Have you done this exercise? Let's move forward. And our next subtopic is negative sentences. Now we will discuss how the negative sentences are formed in simple present tense. What are the negative sentences? Negative sentences ऐसे sentences होते हैं जिनमें not का use होता है, और simple present tense में negative sentences not वाले sentences का structure ये होता है कि सबसे पहले आता है subject, then do or does, not, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये नहीं कहा कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस आता है। ये हमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज यूज़ होता है। डू इज़ यूज्ड फॉर आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड डज इज़ यूज्ड फॉर ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सो वो जो ई एस हमने बेस फॉर्म की वर्ब के साथ ऐड करना था वो हमने डू के साथ ऐड करके उसे डज बना दिया। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डू के साथ ई एस आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू के साथ ई एस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर दैट आई डैश नॉट लाइक स्पिनच। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट लाइक, बिकॉज आई के साथ हम एस ई एस ऐड नहीं करते। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो शी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू के साथ हमने ई एस ऐड कर दिया, और अगर आप देखें तो हमने प्ले के साथ एस ई एस ऐड नहीं किया, हमने डू के साथ ई एस ऐड कर दिया एंड इट बिकेम शी डज नॉट प्ले cricket. Another thing to discuss about the simple present tense is its interrogative sentences. And what are the interrogative sentences? Interrogative sentences are question sentences, the asking sentences, ऐसे sentences जिनमें कोई question पूछा जाता है। और इन sentences का क्या structure होता है simple present tense में? इनमें ये होता है कि हम do और does को subject से पहले in the beginning ले आते हैं। For example, do you study English? Does she study English? अब इसमें अगर आप देखें तो हमने सब्जेक्ट के बेस पे do और does को यूज़ किया है, और स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, बिकॉज दीज आर आस्किंग सेंटेंसेस। नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट। ओपन योर डायरी, होमवर्क डायरी, एंड मार्क द टुडेज डेट ऑन द टॉप, और अगर आप ऑलरेडी डेट मेंशन कर चुके हैं तो दैट्स फाइन। अब आप नोट करें अपनी आज की इंग्लिश की डायरी, और आज की इंग्लिश की डायरी क्या है? डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑन पेज नंबर 12 ऑन योर नोटबुक।
हमने एक एक्सरसाइज अभी सॉल्व की है, आपने उसी पेज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। इज़ दैट क्लियर? ये होमवर्क करते वक्त अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप टीचर को स्कूल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट कर सकते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।